Okay, so let us discuss about solid carbon dioxide cycle actually. So first of all, I will tell you about the various properties of CO2. So you can see the critical point. This critical point, the pressure is 73.8 bar, whereas its critical temperature is 31 degree Celsius. Here you can see this is the liquid. Here we have the solid. Here we have solid plus vapor, and here we have liquid plus vapor, and here we have totally vapor, or you can also call it as gas actually. If you will see this particular pressure here, it is 1 atmosphere, and if you will see the pressure here at the triple point actually, this particular point, the pressure is 5.18 bar, and the temperature, if you will see, this temperature will be equal to minus 56.6 degrees Celsius. So this is this point actually, if you will see, the, rather it's a pH diagram, so it's a triple point line, and on this whole line, this line, it would be the pressure and temperature is constant. Okay, and it's a triple point line because all the three phases are coexisting along this line. Okay, because you can see here you have liquid plus vapor, and here you have solid plus vapor. They are existing simultaneously, so it's a triple point line. Now if you will see the 1 atmosphere pressure, at 1 atmosphere the temperature is minus 78.5 degrees Celsius, and if you see here, this is the solid phase of the carbon dioxide, and this is, if you will increase the you can say you add heat at this particular pressure, then means at minus 78.5 degrees Celsius, if you will add heat to the solid phase at the atmospheric pressure, you will find that it starts changing into vapor along this direction, and at point number 6, it is completely vapor CO2 or gas CO2 actually. Whereas so it means it does not have any normal boiling point. So there is no normal boiling point for CO2, rather it has a sublimation point, and that sublimation point is minus 78.5 degrees Celsius at 1 atmosphere. Okay, so this is the peculiarity of solid carbon dioxide, that it changes into uh, vapor form at atmospheric pressure. It does not have any normal boiling point. Okay, so uh, this was about CO2. Now let us see what is dry ice actually. Basically, solid carbon dioxide is also known as dry ice. So you can, once again, I have shown this diagram only. Now I have a question to all of you. Uh, First of all, can we use CO2 in a vapor compression cycle in summers? In summer season, you just focus here on this diagram. In summer season, the temperature goes up to 40 degrees, sometimes 45 degrees Celsius, and sometimes it could be even higher than 45. Maybe in Rajasthan, it may go up to 48 degrees Celsius also, and on some particular day, it may reach up to 50 degrees Celsius, maybe for a very small duration of time. So, what is your opinion? Can we use CO2 in a vapor compression cycle? No, sir. Why? Sir, because at critical point is at 31 degrees Celsius. So, what will happen if I will use it in a vapor compression cycle actually? Sir, it will always be in vapor state or gaseous It will. state. So, what is the problem with the vapor compression cycle? In which component the problem will occur? सर evaporator सर phase change नहीं होगा सर. इवेपोरेटर में फेज चेंज नहीं होगा.
ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हो आप? हाउ कैन यू से दैट? Sir, actually, problem will be in a condenser, sir, because Problem will be in the at condenser. the end of the condenser, it should be in liquid state, sir. Okay. So, okay. Now let us try to understand. I will, what I will do, I will add one slide here. See, you, all of you know, if we draw a vapor compression cycle, I'm going to draw the pH diagram here. Three to four should be dotted, but because I am directly drawing on the computer laptop, so I am not drawing it dotted, but it should be dotted. Now, if I say that the temperature here is 45 degrees Celsius, that means the ambient temperature is somewhere here. Okay, this is T ambient. It is equal to say 40 degrees Celsius because we require 5 degrees Celsius uh, difference for heat transfer to take place. Now, if I talk about CO2, okay, in case of CO2, what will happen? Now, this actually, you can say this cycle, you can assume any other refrigerant, maybe you can say R22, okay. Now, let us focus on CO2. The diagram of CO2 would be something like this. Why? Because this is 40 degrees Celsius, this is the ambient temperature. And here in case of CO2, this point is already 31 degrees Celsius. Now just think, if we are going for a cycle with the CO2, this is the point. Let us say if I keep the evaporator temperature same, so this was the evaporator temperature earlier. So if I take the CO2, then this is the point. Okay, here we can go along with this particular line. Then because for condensation to take place, the temperature in the condenser has to be more than the ambient temperature. So we will have to go here, go maybe up to here, this particular point. If this point is, let us say, 1 dash for the CO2, then this will be C2 dash. And then what will happen? If I want to come back to say point number 4 or maybe some other point, say here, then I will have to follow the same line. Let us say this is 3 dash. So what is happening? This all line which I have drawn just now, can you see it? This is in this line. Where is it? It is above the critical point. So will the condensation take place? It's liquid plus vapor is here. Here we have the gas in this region. So that means once it is above the critical point, above this particular point, if this is the line of the condensation, so it will not condense actually. It is basically gas only. So whether you talk about point 2 dash, whether you talk about point 3 dash, both are the gas phase only. So there is no condensation. So how the heat transfer will take place if it is not condensing? And suppose after that it's okay. I am considering that it is coming like this. Okay. So once again, I will draw this diagram once again. So I am considering this particular diagram now. This is, I can say here the temperature is, I need a temperature of system which is higher than the ambient temperature. So this is the ambient. This is 40 degrees Celsius. Okay.
and here on this line I want it to be 45. Okay, but now you can see when the heat transfer will take place, then rather than saying the temperature here 40 or 45, the ambient temperature line I have drawn it, it's 40. Okay, everywhere it's 40. But in case of CO2, if the temperature here is 45, okay, the heat transfer will take place, but this gas will not change into liquid actually. So probably here the temperature could be say up to 40. It won't be even 40. If it is say, if I call this as 35, then only it can be 40 here. Okay, or if it is say 30, then it can go up to say 35. But in both cases, the what is happening actually, the problem is the gas, this will remain in gas phase only, so it's a sort of sensible heat lost by the CO2. तो sensible heat निकलेगी, condensation नहीं होगा. So we will have to do some modification in the vapor compression cycle actually. So what is that modification, that I will let you know. In vapor compression cycle, first of all we have the evaporator here. Then after the evaporator we have the compressor here. After the compressor, in vapor compression cycle we have the condenser here. But if it is CO2 as a refrigerant we are considering, then in that particular case we won't be having a condenser here, rather it's a component which is known as gas cooler. And then after that we have the expansion device here. Okay, so this will be point number 1, this will be point number 2, this will be point number 3, this will be point number 4. So in the gas cooler it is the QGC, heat is ejected. So if the temperature, let us say here is at point number 2 is 45 degrees Celsius, then at point number 3 the temperature could be say 35 degrees Celsius, depending upon that the temperature of ambient air is say 30 degrees Celsius. Okay, T ambient is 30. Then the condensation will take place, and say you can reduce the you can maintain a temperature of say minus 10 degrees Celsius here. Okay, and that drop in temperature from 35 to minus 10 degree will take place in a throttling device. Now this is the diagram here. Now this is the diagram which you have just drawn here. So this is point number 1, this is point number 2, this is point number 3, this is point number 4. And now this is this cycle. You can see in vapor compression cycle what used to happen was this line from 2 to 3 is within the condenser and it is below the critical point. Okay, see in vapor compression cycle with any other refrigerant the cycle is like this: 1 2 3 4, and this is the critical point here, whereas this cycle is above the critical point of the CO2. And what is the temperature at the critical point? Tc is equal to 31 degrees Celsius for CO2 and Pc is equal to 73.8 bar. This is the critical point of CO2. Okay, so now it is in the gas phase. So now you can see, because this cycle is the CO2 cycle is above the critical point, so we call it as a super critical VCR cycle. When we say VCR, VCR means vapor compression. The compression of vapor is occurring in this process from 1 to 2. So it remains vapor compression cycle only, but it is now supercritical. Okay, is it clear? So whereas if you take the normal VCR cycle, it is basically subcritical. Though we don't use this terminology, subcritical,
in case of normal VCR cycle, but that is actually subcritical. And basically condenser is replaced by a subcooler in case of supercritical cycle, because in that particular case, now it is not the condensation process. There won't be any condensation from 2 to 3 here, but it's basically QGC is a sort of sensible heat lost by the gas. So we will say mass of the CO2 multiplied by the specific heat of the CO2 multiplied by delta T between 2 to 3. So this is how we can write the heat lost during in the gas cooler. And let me tell you, do you know which is the most appropriate refrigerant nowadays? Does anybody know which is the best refrigerant? Sir, R134A. R134A. If I say no, I will say no. It's not the best refrigerant. So which is the best refrigerant? See, if you will, we just talked about CO2. So I will say CO2 is the best refrigerant. Why CO2 is the best refrigerant? Can anybody answer? किसी को पता है? What is the reason for CO2 to be the best refrigerant? So non-toxic है, availability भी ज़्यादा. नहीं, that is true. वो तो हम R134A को भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अवेलेबल तो वो भी है. What is the speciality of CO2? Sir, CO2 can be used to bridge the gap between more high and low temperature. जैसे 54 से -25 तक आना है तो CO2 would be good. No, it is not the reason. Okay, you know what is the problem with the refrigerants? You have, do you know which refrigerant is used in this refrigerator? रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है? Sir, R600 I think. R600. R144. R144. Yes, sir. ये कौन सा रेफ्रिजरेंट है? मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में कभी भी. What is R600A? Sir, that I don't know, but I have read somewhere. Isobutane. Okay, it is isobutane. It's a isomer of butane. Butane is C4H10. यही होगा ना, butane? Yes, sir. Yes, sir. So it is isobutane. It's a isomer of butane, normal butane. So this is the formula for, if it is the normal butane, then we have a isobutane also. I am not going to the chemistry, but the name is isobutane. Okay. So 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. But normally we go for a mixture of R600 and R290. Does anybody know what is R290? पता है आपको? क्या होता है ये? C3H8 क्या होता है? सर प्रोपेन. प्रोपेन है. सो हम लोग जो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर यूज़ करते हैं 50% प्लस 50% में.
50% आइसोब्यूटेन और 50% प्रोपेन। एक तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर में। और क्या होता है? एक रेफ्रिजरेंट और भी यूज करते हैं। सर R410 भी करते हैं शायद से। R134A यूज करते हैं। क्या नाम है इसका? केमिकल नेम क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन। शाबाश। ओके ओके। सो बेसिकली ए स्टैंड, ए क्या है ये? सर एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब? सर एसिमेट्रिक मतलब जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के पोजीशंस हैं वो चेंज कर देते हैं हम। आइसोमर है बेसिकली। आइसोमर। जिस डिटेल की बात कर रहे हो तुम, हो सकता है वो केमिस्ट्री में हो, मुझे नहीं मालूम, बट इट्स आइसोमर। ओके, यस। इज इट क्लियर? So we are using R134A. Now, do you know what is the इससे पहले हम रेफ्रिजरेटर में क्या यूज करते थे? CFC सर, कौन सा CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो तो पूरा नाम है ना CFC का, वो तो नाम हो गया पूरा। बट एक्चुअली में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते थे? सर R12। R12। क्या होता है R12? ये दैट आई डोंट नो सर। क्या बना ये? CCl2F2 क्या बना? डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन। डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन। ये बन गया। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर इन्वायरमेंटल इशू है सर, कौन सा? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से यहाँ स्विच हो गए, मतलब हमने R134A यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी जगह पे। और ओजोन डिप्लीशन का इशू कौन से एलिमेंट की वजह से है इसमें से? तीन सर एलिमेंट? क्लोरीन एंड फ्लोरीन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल सर। नहीं, सिर्फ क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल है। हम्म, ओजोन डिप्लीशन के लिए सिर्फ क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके ओके, सर। अब इसमें बताओ, R134A के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अच्छा, सर दूसरी ओजोन प्रॉब्लम। डिप्लीशन के टर्म में तो कोई प्रॉब्लम। ओजोन डिप्लीशन की टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लोरीन तो है नहीं, कोई क्लोरीन का एटम ही नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ? सर हेल्थ के लिए शायद कोई इशू बन जाता है इससे, इनहेल कर लो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है इसमें किसी एक एलिमेंट की। अरे भाई, मेरे को एक चीज बताओ कि ये रेफ्रिजरेटर से बाहर कब निकलेगा जो ये हेल्थ इशू हो जाएगा? पूरा सील्ड सर्किट है। सील्ड सर्किट है कि नहीं है? तो जब सर्किट ही पूरा सील्ड है तो उसमें से ये बाहर कब आएगा, और कब तुम इसको इनहेल करोगे? वो भी तब करोगे जब तुम रेफ्रिजरेटर के साथ में जुड़ के खड़े होगे। मतलब सारा दिन वहीं पे रेफ्रिजरेटर को सूंघ रहे होगे और वेट कर रहे होगे कि लीक हो तो मैं इसको सूंघूं। ऐसे थोड़ी होता है। इसके अंदर फ्लोरीन एटम है। ये जो फ्लोरीन है ना, इसकी क्या प्रॉब्लम होती है? इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? GWP। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म GWP? यस सर। क्या होता है ये? सर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मेजर करते हैं सर। विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मेजर करते हैं? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड सर। CO2 के कंपैरिजन में करते हैं। तो यस CO2 सर। का GWP कितना होता है? 1 सर। 1 है। अब इसका पता है कितना होगा R134A का? नो सर। R134A का, इफ आई एम नॉट, 1400 के आसपास होता है। ओके, GWP।
अब तुम ये GWP की बात तो कर रहे हो, किसी को पता है ये GWP होता क्या है? क्या होता है GWP? Potential, sir, for global warming. नहीं, पोटेंशियल तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी 1430। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कैसे हो जाती है? Sir, it might be, since it is a potential, so it might be the ability of that material like carbon dioxide or fluorine to trap the heat coming into the Earth's atmosphere. हम्म, कितना ज़्यादा ट्रैप कर सकता है, शायद यही होगा GWP। अच्छा देखो, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब हम कहते हैं कि CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, हमने बेसिकली CO2 को एक रेफरेंस लिया हुआ है। तो CO2 इज ए रेफरेंस gas with respect to which we are defining the global warming potential of all other gases. My first question is, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का आपने थोड़ा सा ठीक बता दिया कि वो गैसेस को ट्रैप कर रहा है, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग आई थिंक होता है सर, ओके, क्योंकि वो ग्रीन हाउस शॉर्टर इफेक्ट की वेवलेंथ्स वजह ट्रैप से, हो जाते हैं सर। यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है that is basically trapping of the CO2, means trapping of the heat by CO2 within the atmosphere actually। ठीक है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आते हैं सन से, ठीक है, सन से जो इंफ्रारेड, यहाँ पे अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो रेडिएशन आए इंफ्रारेड, ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होती है इसकी लॉन्ग हो जाती है वेवलेंथ, ठीक है, इंफ्रारेड रेज की। तो ये जो CO2 की लेयर है, जो CO2 है गैसेस में या एटमॉस्फेयर में, वो CO2 जो होती है लॉन्गर वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देती, उसको रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो इस तरह से जो है हीटिंग इफेक्ट अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बींग। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे लिए अर्थ पे भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये गैसेस ट्रैप CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है या हो रहा है, इट इज़ इसेंशियल। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट्स इंक्रीज्ड अ लॉट, देन इट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। एंड यू नो द effects of the global warming also. The increase in the global warming is causing the ice at Antarctica and other glaciers to melt actually, and it is causing the floods and all change in the seasons throughout the year. Okay, so we have to curb that. और रेफ्रिजरेंट भी जो है उसमें एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट, रेफ्रिजरेंट भी उसमें एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब एक्चुअली में अगर मैं कंसीडर करूं, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं। कि अगर मैं R134A की बात करता हूं तो इसका 1430 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। CO2 की बात करता हूं तो उसका 1 है। तो बेसिकली CO2 के रेफरेंस में R134A का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया। इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर मैं 1 kg CO2 लेता हूं तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर मैं उसको कहता हूं कि 1 हो रही है, और इसी तरह से अब मैं क्या करता हूं, मैं 1 kg R134A लेता हूं और देखता हूं कि उससे जो लेवल है ग्लोबल वार्मिंग का कितना इंक्रीज हो गया, तो मुझे पता लगा कि वो 1430 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि R134A का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 1430 टाइम्स दैट ऑफ CO2 है। तो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि अगर 1 kg R134A रिलीज होगा सिस्टम से तो वो 1430 टाइम्स हायर ग्लोबल वार्मिंग करेगा इन कंपैरिजन टू लीकेज ऑफ 1 kg ऑफ CO2।
तो 1 kg ऑफ CO2 जब तक, मतलब 1 kg की जगह पे अगर CO2 1430 kgs रिलीज होता है और R134 1 kg रिलीज होता है, तो दोनों का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सेम है. ओके, सो आई कैन से 1430 kg of CO2 is equivalent to 1 kg of R134A in terms of global warming potential or global warming. Okay, both have the similar global warming potential. Is it clear? So इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए R134A जो है, it's not a proper refrigerant. The proper refrigerant is CO2 because it does not have chlorine atom, which will cause ozone depletion, first of all. Secondly, it does not have any fluorine atom, which will cause global warming potential और global warming. तो दोनों ही लिहाज से, दोनों ही तरह से CO2 एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है. बट द ड्रॉबैक इज इट्स ए वेरी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, वेरी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट. तो इसके लिए जो हमें पाइपिंग चाहिए होगी सिस्टम में, पाइपिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, विच कैन बियर सच हाई प्रेशर. कैसे हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, आपको बताया था. इसका क्रिटिकल प्रेशर कितना है बताओ. 73.8 बार. किस टेम्परेचर पे है? 31 डिग्री सेल्सियस पे. तो समझ में आई बात कि इतना हाई प्रेशर है, जबकि नॉर्मल रेफ्रिजरेंट में हो सकता है कि 5-6 बार 7 बार हो, वो भी 40-45 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंसर में. लेकिन यहाँ पे तो हम एक तो कंडेंसर इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टेम्परेचर लो तो इंडिया में जाएगा नहीं. आजकल के दिनों में तो ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, से माइनस, जैसे रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशन है, इफ़ वी हैव ए रेफ्रिजरेटर in which there is CO2, then we can use it nowadays. विंटर सीजन में तो कर लेंगे हम, दिसंबर जनवरी में, फरवरी तक, क्योंकि फरवरी में भी टेम्परेचर जो होता है 31 डिग्री से लो होता है. द मोमेंट द टेम्परेचर इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही एम्बियंट टेम्परेचर 31 डिग्री से इंक्रीज होना शुरू होगा, रादर देन 31 क्या 25 डिग्री सेल्सियस से ही इंक्रीज होना शुरू होगा, हम CO2 को यूज़ नहीं कर सकते. सो बेसिकली ये ड्रॉबैक है. इसलिए हम CO2 को वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज़ नहीं करते, सब क्रिटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज़ नहीं करते. हम उसको यूज़ करते हैं सुपर क्रिटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल में. इसमें सुपर क्रिटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ करते हैं CO2 को. इज इट क्लियर? एंड CO2 इज वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेंट, क्योंकि ना तो इसने ग्लोबल वार्मिंग करना है और ना ही इसने ओजोन डिप्लीशन को कोई नुकसान पहुंचाना है, मतलब ओजोन को कोई नुकसान पहुंचाना है, कोई डिप्लीशन नहीं करेगा. ठीक है. इसी तरह से एक और रेफ्रिजरेंट होता है जो आज की डेट में बहुत बेस्ट है, वो रेफ्रिजरेंट है अमोनिया. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अमोनिया एंड CO2? कैन यू टेल मी? कॉमन थिंग अबाउट देम. फिर इसका भी GWP 0 होता है. GWP 0 होगा और और सर ओजोन डिप्लीशन ओजोन डिप्लीशन भी वो भी 0 0 हो गया. ठीक है. तो बट ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, ठीक है ना. तो बट द थिंग इज ammonia has a very high latent rate of vaporization, very high. Okay, but simultaneously it has a problem also, its specific volume is very high. So whatever is the advantage which you were going to get from the high latent rate of vaporization is actually diminished because of the high specific volume. क्योंकि हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होने से क्या होता है, जो कंप्रेसर का साइज होता है ना, साइज ऑफ कंप्रेसर, that will actually increase, that actually increases for the same mass flow rate in comparison to some other system or some other refrigerant rather. ठीक है. तो बट
The advantage is once again 0 and 0, global warming potential as well as ozone depletion. तो ये इसका एडवांटेज है. तो अमोनिया एंड CO2 एंड अमोनिया, दीज आर द टू बेस्ट रेफ्रिजरेंट्स. आने वाले टाइम में we will be looking towards only CO2 और अमोनिया, यही दो रेफ्रिजरेंट रहेंगे in most of the applications. कैस्केड सिस्टम में भी जब मैंने, शायद आपने अगर वीडियो ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया होगा आपको कि हाई टेम्परेचर सर्किट में अमोनिया है और लो टेम्परेचर सर्किट में CO2 है कैस्केड सिस्टम में. हैव आई सेड देयर इन द वीडियो? जिसने देखा था ध्यान से सुना यस सर, उसको यस सर, बताया था Yes, वहाँ sir. पे ना. अमोनिया और CO2 ही मोस्टली यूज़ करते हैं कैस्केड में भी. हालांकि कैस्केड में बहुत सारी और गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली अमोनिया एंड CO2 आर वेरी वेरी गुड पेयर ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स. ठीक है, ओके. तो आई होप दिस इज क्लियर एंड बोथ आर, यू कैन से दिस इज आल्सो नेचुरल रेफ्रिजरेंट. CO2 जो है R744 है. अमोनिया का नंबर कितना है? सर R717. R22. R717. One. R22 नहीं है भाई. R22 आपको Sorry, बता sorry. देता हूँ. R22 का फार्मूला है CHClF2. क्या बना? Difluorochloromethane. डाईफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन. Monochloromethane. ठीक है, ये R22 है. अच्छा ये बताओ, अब एक बात और पूछ लेता हूँ. जब हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, ठीक है, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं. जब हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं तो हम कौन सा रेफ्रिजरेंट लेते हैं? बेस. विच रेफ्रिजरेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर द ओजोन डिप्लीशन? मीन्स मेरा कहने का मतलब है उस रेफ्रिजरेंट का नाम बताओ जिसके लिए ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 है. R11. R11 के लिए क्या होता है? R11 ट्राइक्लोरोफ्लोर मोनोक्लोरोमीथेन. 3 क्लोरीन है सर. क्या बना ये? बताओ क्या बना? Trichloro monofluorometane. करेक्ट. इसके लिए ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है 1. अब बात करें अगर R12 की, इसके लिए ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.86. बात करते हैं R22 की, इसके लिए है 0.055. ठीक है, तो अब ये देख लो. अब जब हम इन रेफ्रिजरेंट्स को यूज़ करते थे, जब ओजोन डिप्लीशन की बात हुई, तो जब हमें ओजोन डिप्लीशन के बारे में पता लगा, इनके बारे में, तो हमने इसका पता लगा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 है, इसका पता लगा R12 का 0.86 है, तो हमने कहा कि सबसे बढ़िया रेफ्रिजरेंट इनमें से ये वाला है R22. तो मोस्टली जो एप्लीकेशंस थी वो इसके ऊपर स्विच हो गई, इसके ऊपर R22 के ऊपर स्विच ओवर हो गए. जैसे जहाँ पे भी हम R11 यूज़ करते थे, बता सकते हो R11 कहाँ पे यूज़ करते हैं? कहाँ यूज़ करते थे पहले? रेफ्रिजरेटर सर. रेफ्रिजरेटर में R11 कभी भी यूज़ नहीं होता. ओके सर. Sir, centralized AC. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में. तो जब हमें पता लगा कि इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 है, तो हमने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ करना शुरू कर दिया R22 को. अब इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ क्यों करते थे R11 को? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड विद, इट हैज़ ए हाई वॉल्यूम फ्लो रेट. हाई वॉल्यूम फ्लो रेट, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होती थी. ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होती है, तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में वी आर यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर.
और एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है हाई वॉल्यूम फ्लो रेट को हैंडल कर सकता है। ओके, इसलिए हम जो है R11 को यूज़ करते थे वहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में। फिर हम स्विच हो गए R22 पे। ओके, R22 पे उसके बाद हम स्विच हो गए कई जगह पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट जहाँ पे कैपेसिटी कम होती है R134A भी यूज़ करते हैं। बट अब R134A से भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें फ्लोरीन है। तो देखते हैं कि आगे अब कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। बट और ये बात समझ में आ गई। अब R22 एक तरह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल रेफ्रिजरेंट। ट्रांजिशनल रेफ्रिजरेंट क्योंकि ये ट्रांजिशन में आया। कैसे ट्रांजिशन में आया? जैसे हम R11 यूज़ कर रहे थे तो इसको इस R22 ने रिप्लेस कर लिया डायरेक्टली विदाउट मच चेंजेस। तो हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया एज ए ट्रांजिशन रेफ्रिजरेंट, जिससे कि ज़्यादा सिस्टम में चेंजेस नहीं करने पड़े। ठीक है। एक कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी भी होती है ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट रेफ्रिजरेंट। ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट रेफ्रिजरेंट का क्या मीनिंग है कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो R12। ठीक है। इस सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको हम एकदम तो चेंज नहीं कर सकते। जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो हम एक ऐसा रेफ्रिजरेंट ढूंढेंगे जो कि R12 का ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट हो। ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट मतलब R12 को बाहर निकाला और उस रेफ्रिजरेंट को जिसका नाम ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है उसको डाला और सिस्टम जो है ढंग से काम कर रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं किया हमने। तो ये इसको बोलते हैं ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट। तो नॉर्मली हमने जो R12 वाले सिस्टम थे उसमें R22 को यूज़ करना शुरू कर दिया। बट एक्चुअली मेरे रेफ्रिजरेटर में हम R22 यूज़ नहीं कर सकते, याद रख लेना। जहाँ पे कुछ और अदर एप्लीकेशन में छोटी मोटी एप्लीकेशंस थी वहाँ पे R12 की जगह पे हमने R22 यूज़ करना शुरू कर दिया। सो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट। और इसको हम R22 को ट्रांजिशनल रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन में मतलब ट्रांजिशन कैसे? जब हमारे पास हम R12 यूज़ कर रहे थे या R11 यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या करा कि उसकी जगह पे R22 यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इट बिकेम्स एज ए ट्रांजिशनल रेफ्रिजरेंट जब तक कि हमें कोई और रेफ्रिजरेंट नहीं मिलता जिसका कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कम है। क्योंकि R11 और R12 का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 और 0.086 था। तो R22 उस समय बहुत ही सही रेफ्रिजरेंट था जिसका क्योंकि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0.055 था। तो वी स्टार्टेड यूजिंग R22 एट दैट टाइम। इज इट क्लियर? लेकिन आज की डेट में अगर आप इन रेफ्रिजरेंट्स को भी R11, R12 और R22 को भी देखोगे तो इनके सभी के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई हैं, कम नहीं है। इसलिए इन सबको रिप्लेस करना है। R12 जो है सबसे पहले R11 जो है क्लोज हो गया, यूज़ करना सबसे पहले इसको बंद किया। उसके बाद 210 के बाद इसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे। आज की डेट में R12 का कोई भी सिस्टम नहीं आता, किसी भी सिस्टम में R12 नहीं है। अब जो विंडो एसी आते थे से 2010 से 2020 के बीच में आई कैन से अप टू 18 R22 आ रहा था एसी में। ठीक है, 2018 तक R22 आ रहा था। या इसमें प्रोपेन भी आ रही थी, कुछ कुछ सिस्टम में प्रोपेन नॉर्मली ज़्यादा विंडो एसी में यूज़ नहीं हुई, बट इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि प्रोपेन को हम यूज़ कर सकें। तो R22 फिर इसमें R410A यूज़ होना शुरू हो गया। R410 के बाद आज की डेट में हम स्विच ओवर कर गए हैं R32 पे।
तो इस तरह से कुछ ट्रांजिशन चल रहा है। सबसे पहले R22 जो करते थे, फिर प्रोपेन किया, फिर R410 किया, और आज की डेट में मोस्टली जो एसीज आ रहे हैं वो R32 के ऊपर आ रहे हैं, R32 के ऊपर। इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो एक स्लाइड और इंसर्ट करते हैं। जस्ट वेट, अभी जरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यस, सो बेसिकली आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक तो होते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, एक होते हैं आर्टिफिशियल। ये दो कैटेगरीज हो सकती हैं। इसी तरह कैटेगरी क्या हो सकती है, एक होती है CFC, एक होती है HCFC, एक होती है HFC, एक होती है इनऑर्गेनिक। ओके, इस तरह से एक होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में भी दो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एजियोट्रॉप्स, दूसरा होता है सीओट्रॉप्स, तीसरा होता है नियर एजियोट्रॉप्स। तो CFC आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFC क्या होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हो गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC क्या हुआ? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एग्जाम्पल है R11, R12, इसमें R22 हो गया, इसमें R134A हो गया। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक आपको मालूम है कौन कौन से हो सकते हैं। वाटर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं R718, R744, CO2 जिसको बोलते हैं R717, अमोनिया है R764। क्या होता है R764? सर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब अभी इसका नाम सुना है कभी आपने, एजियोट्रॉप्स का? यस सर। क्या होता है एजियोट्रॉप? सर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स व्हिच एक्ट एज प्योर सब्सटेंस। ओके, which behave as a pure substance, mixture of two or more pure refrigerants, okay, which behave as pure refrigerant। यहाँ पे प्योर नहीं लिखना चाहिए, मिक्सचर ऑफ टू और मोर रेफ्रिजरेंट्स विच बिहेव एज ए प्योर रेफ्रिजरेंट। प्योर रेफ्रिजरेंट का क्या मतलब होगा? प्योर सब्सटेंस रादर। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? आवाज नहीं आई। केमिकली होमोजीनियस, फिजिकली इनस्टेबल। ओके, होमोजीनियस तो नहीं, कुछ और, ये तो चलो ठीक है, समझ गया मैं। कुछ और बता सकते हो? सब प्रपोर्शंस कांस्टेंट रहते हैं। प्रपोर्शंस कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लिक्विड में होगा तो सब में, लिक्विड और वेपर में होगा तो भी कांस्टेंट रहेगा, और ठीक है वो प्योर सब्सटेंस है। बट और कुछ?
देखो, जब कंडेंसेशन होती है प्योर सब्सटेंस की या बॉइलिंग होती है, तो ड्यूरिंग बोथ दीज फेज चेंजेस प्रोसेस, जो टेम्परेचर होता है ना, दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। आप लोगों को मालूम है, जब भी आप वेपर कंप्रेशन साइकिल में प्योर रेफ्रिजरेंट के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए डायग्राम बनाते हो, तो ये लाइन जो होती है, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है इस पे, और प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके। और यहाँ पे भी जब कंडेंसेशन भी होता है, बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और प्रेशर जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? तो ये प्योर सब्सटेंस है। अब एजियोट्रॉप जो होता है, एजियोट्रॉप इज ए सब्सटेंस विच इज ए मिक्सचर ऑफ, नॉर्मली हम दो का ही लेते हैं, ठीक है, तीन का मैंने भी नहीं सुना एजियोट्रॉप अभी तक। तो दो सब्सटेंसेस, दो का मिक्सचर होता है एजियोट्रॉप जो है। दो रेफ्रिजरेंट होंगे, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रेंज है प्रेशर की, मतलब कुछ नैरो रेंज होती है प्रेशर की, जहाँ पे ये दोनों रेफ्रिजरेंट मिलके बिहेव एज ए प्योर सब्सटेंस, बिहेव एज प्योर सब्सटेंस। इसका प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि जब कंडेंसेशन होगी या बॉइलिंग होगी, तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया है ना, जो इस डायग्राम में शो किया है कि ये जब इवेपोरेशन होती है वेपर कंप्रेशन साइकिल में, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इसी तरह कंडेंसेशन में यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो दिस इज एजियोट्रॉप बिहेवियर। तो एजियोट्रॉप हालांकि मिक्सचर है, बट इट इज बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इसी तरह से नियर एजियोट्रॉप है। नियर एजियोट्रॉप का क्या मतलब है? नियर एजियोट्रॉप में टेम्परेचर चेंज होगा ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग, बट ज़्यादा नहीं होगा, समवेयर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ओके, या 1.5 1.2 इस तरह से, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब बात आती है जियोट्रॉप्स की। जियोट्रॉप क्या है? जियोट्रॉप वंस अगेन वही है। अ, अच्छा, तुम चलो पहले एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। डू यू नो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एजियोट्रॉप्स? उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? एजियोट्रॉप की नेमिंग कैसे होती है? कैन यू नेम एनी एजियोट्रॉप? किसी का नाम पता है? R502A R5? 02A ओके। ऐसा है कि एक रेफ्रिजरेंट है R501A, ठीक है, और एक होता है आया R500A, एक होता है R501A। ओके। तो जो बेसिकली नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो 500 की सीरीज है, 500 से 599, ये नंबरिंग जो है हमने एजियोट्रॉप्स के लिए फिक्स की हुई है। ठीक है। अब जैसे R500 ए बोला या 501A बोला, आई एम जस्ट 500 में बता देता हूँ तुम्हें, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। R500 में जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, एक है R12 और दूसरा है R152A, ये है, ठीक है। और R501 जो है, आई थिंक इसमें होता है R12 प्लस R22। तो चेक कर लेना एक बार जरा, आई डोंट रिमेम्बर दी मिक्सचर्स, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही दोनों हैं, R12 और R22। मैं नेट पे भी साथ में सर्च कर रहा हूँ, तो अभी बताता हूँ तुम्हें मैं, क्योंकि सबकी जो कंपोजिशन है वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो
बट जहाँ तक मुझे लग रहा है यही होगा। यस, यही है इसका जो मैंने बताया है। ठीक है, एक इसमें होता है शायद 48.8 और दूसरा होता है 51.2% बाय वेट। तो ये चेक कर लेना कौन सा R12 होता है या R22 होता है, दैट हैज़ टू बी चेक्ड। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे इतना ही याद पड़ रहा है अभी। ओके, तो जितनी भी आइसोट्रॉप सीरीज होगी, एक यही नहीं है, एक आइसोट्रॉप है R507A आल्सो। सो आई हैव रिटन ए रिसर्च पेपर ऑन दिस आल्सो, जो R507 R401A। तो मैं अभी आपको वो रिसर्च पेपर भेज दूंगा, यू कैन रेफर टू दैट। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं हम जियोट्रॉप। जियोट्रॉप भी वही है, मिक्सचर है। 2 रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं, मिक्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करता। ये प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करता है, ये जब जब हमने एजियोट्रॉप की बात की तो मैंने कहा कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन और बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एजियोट्रॉप जियोट्रॉप के केस में ऐसा नहीं होता। जियोट्रॉप का कुछ इस तरह से होता है, ये अगर मैं पीएच डायग्राम बनाता हूँ और अगर मैं ये साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर है, और ये अगर मैंने वेपर कंप्रेशन साइकिल बनाई। अच्छा, अब 1 मिनट, पहले तो मैं जियोट्रॉप की बजाय मैं नॉर्मल रेफ्रिजरेंट, प्योर रेफ्रिजरेंट की बात बता रहा हूँ। आपको ये पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर लाइन कैसे जाती है प्योर रेफ्रिजरेंट के केस में? प्योर रेफ्रिजरेंट के केस में यहाँ से टेम्परेचर लाइन अगर स्टार्ट हुई, ये ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर है तो ये पहले वर्टिकल यूँ जाएगी, फिर यूँ और फिर यूँ जाएगी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जियोट्रॉप की। जियोट्रॉप के केस में क्या होगा, जियोट्रॉप के केस में होगा कि मैंने ये डायग्राम बनाया, हमें प्रेशर तो सिस्टम में कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। सो प्रेशर इन द सिस्टम इज कांस्टेंट। यहाँ पे हियर वी हैव द कंडेंसर प्रेशर, हियर वी हैव द evaporator pressure. However, if we draw the temperature lines, okay, then if I see the pressure temperature here, if I say at this particular point the temperature is say 40 degrees Celsius, and if I the temperature line will go something like this. This is the, you can say, liquid plus vapor region. So you can see what is happening to temperature actually. No, I think it should go like this actually. Okay, so what do you find here actually? Now this is the temperature here. So this temperature will be lower. So this temperature could be say
35 degrees Celsius. So what is happening during condensation? Condensation at this particular point and at this particular point, what you can find here, the temperature is 40 degrees Celsius, whereas the temperature here is 35 degrees Celsius. So this delta T जो temperature drop आ रहा है, this delta T during condensation, this is equal to 5 degrees Celsius, and this is known as temperature glide. This is known as temperature glide. Similarly, when we talk about boiling, so the temperature lines are like this in the two-phase region. So what is happening? If the temperature at this particular point is, let us say, minus 5 degrees Celsius, then the temperature at this line will be 0 degrees Celsius, or maybe different, maybe you can say 2 degrees Celsius. So what is happening during evaporation? What is the value of delta T, temperature glide? That is equal to 2 minus 5, which is equal to 7 degrees Celsius. So there is a temperature glide of 7 degree in case of evaporation. So this is the behavior of a zeotropic refrigerant. Okay, so if I have to draw the vapor compression cycle on a TS diagram for a zeotropic refrigerant, then how will you draw it? Then it would be now you have to think about the temperature. If you consider, let us start from this particular point. Let us say this is point number 3. This is the, you can say, constant enthalpy process. Now the process of evaporation have to start. So how the evaporation will look like? You refer to the pH diagram. Here at point number 4, the temperature is minus 5, whereas at the temperature point number 1, the temperature is 2. So it means the line of evaporation should go like this, then vertical, then it would be like this, and then it would be like this. So you can say this value, this is the temperature glide during condensation, and this is the temperature glide during evaporation. So this is how you will show the vapor compression cycle for a zeotropic refrigerant or a zeotropic mixture. Okay, is it clear? आई बात समझ में? Anything you would like to ask? Hello. No, sir. मतलब बात समझ में नहीं आई है? सर आ गई सर। आ गई है नहीं, क्योंकि अभी बोला था नो सर, मैंने पूछा समझ में आई है तो उसने कहा नहीं नो सर, सर। मैं पूछा कि पूछना है कुछ तो उस पे बोला नहीं सर। Okay, so I hope this is clear to you now. Okay, so if it is clear, so now I will end my lecture here only. So whatever is the video recording that I will send you, you can, if you want, you can see it. Okay, तो अब नेक्स्ट जो पार्ट आपने करना है, अब आती है बात प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। आपने कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम अब पढ़ लिया है। ओके, तो आप क्या करोगे, जो पिछली बार मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया था, हैव यू गॉन थ्रू दैट? यस सर। यस सर। वो कंप्लीट कर लिया, बना लिया पूरा? यस सर। यस। ओके,